बाय सोलर, सोलर ही क्यों? और आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है, सोलर पैनल्स इतने सस्ते हो गए हैं, एलईडी लाइट्स इतनी सस्ती हो गई है कि हम कमाल कर सकते हैं कुछ पैसों में दूर दराज के क्षेत्रों में। Today we are interviewing Mr. Prateek Kumar. He is the president of Prayatan. So sir, I would like to ask my first question, that would be, can you tell us a bit about your journey and what brought you into the development sector and your current role in Prayatan? Thank you for this opportunity. My journey in the social sector started by stumbling and falling into a space. I was an engineer from IIT Delhi, so a hardcore technical person. Then I had the opportunity to join the civil services about 33 years back. And in that journey, I had the good fortune of working in social sector ministries like the education HRD, as it used to be called, the health ministry, and of course the information and broadcasting ministry, wherein we had a chance to delve very deep into all the non-financial and non-technical departments of the government of India. And that is where I learned some of the first tricks around the social sector and how it functions. Later on, I realized, and I resigned from the government and I joined the United Nations to work on a project on health. It was again purely social sector. After 4 years in the United Nations, I have been completely devoted in the NGO world. So one of my stints was in an organization called Magic Bus, based out of Mumbai, across 23 states, where I had the good fortune of scaling up the program across 23 states. And that is where we had a program where we used to take young people from childhood to livelihood and out of poverty. Basis those learnings, I joined Prayatan at the end of 2016. So this was an already existing organization out of Bihar, run by some of the people that I know personally. I had the good fortune of inheriting a running organization, and that's exactly what I did in 2016. It's been a wonderful 7-year journey, now coming to 8, closer to 8. I think the way I have brought in my technical technology experience into the social sector realm has been a great point for me, because I'm not a sector specialist. I bring in technology, systems and process knowledge, but have learned about different sectors like education, rural development, environment, and so on at the job, in the job. It's been a fantastic learning process, but the journey has not been very linear. So I'm not a social work graduate and I've moved into the social sector. But I guess all these experiences put together make something very potent in a person like me, who's now completely devoted and is a social worker, putting in all the experiences that I have had so far over the years. Thank you, sir. मेरा दूसरा प्रश्न होगा कि वाई सोलर, सोलर ही क्यों, और आपको और आपकी टीम को सोलर लाइट इनिशिएटिव ही क्यों करना है रूरल एरियाज में? प्रयत्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि हम पृथ्वी को एक ऐसे रूप में रखें, उसके साथ ऐसा बर्ताव करें कि हमारे इसके आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको एक बेहतर धरती मिले। अफसोस की बात यह है कि जिस कदर हम पृथ्वी और उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये और मुश्किल होता जा रहा है। तो हमारे पूर्वज जितने साफ पानी में, जितनी शुद्ध हवा में जीते थे, उतना हम नहीं जी रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी शायद इससे भी ज़्यादा स्ट्रगल करे। तो हम ऐसा क्या कर सकें कि आने वाली पीढ़ी बेहतर कर पाए, इसके लिए प्रयत्न उपाय करता है। और उस उपाय के तहत हमारा ये मानना है कि सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जिसमें हम मिनिमल कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करके घरों में रोशनी ला सकते हैं, इंडस्ट्रियल औद्योगिक काम कर सकते हैं, और इन सब करने के बावजूद हम वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ रहे हैं और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस नहीं छोड़ रहे हैं। और ऐसे करने से हम
अपने आप को एक सस्टेनेबल प्लैनेट बनाने में मदद कर सकते हैं। एक तो ये कारण है जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम करते हैं। दूसरा, सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है भारतवर्ष में कि हमारे देश में सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं है, बहुत आयात है। दूर दराज के गांव, बहुत सारे क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सूरज की रोशनी है वहां पर। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है, सोलर पैनल्स इसमें सस्ते हो गए हैं, एलईडी लाइट्स इतनी सस्ती हो गई है कि हम कमाल कर सकते हैं कुछ पैसों में दूर दराज के क्षेत्रों में। आज करके हमारा जो सोलर पैनल है, धीरे धीरे हम 15% एफिशिएंसी के करीब हैं, 15 से 20%। आने वाले समय में हम 25-30% चले जाएंगे, तो पूरी की पूरी दुनिया सौर ऊर्जा की तरफ जाएगी। और हमारा ये मानना है कि अभी भी जो बहुत सारे गांव वाले वंचित रह गए हैं मुख्य धारा में जुड़ने से, वो सौर ऊर्जा के आने से, सोलर लाइट, सोलर जो भी सिस्टम्स के आने से, वो मुख्य धारा में जुड़ने में उनको आसानी होगी। और ऐसा करते हुए हम वातावरण की भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तो तीसरा सवाल मेरा ये होगा सर कि जो गांव हैं उनमें ज़िंदगी कैसी थी जब ये सोलर लाइट्स नहीं थी, और ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं जो आपके साथ रह गई? उम्र के साथ हमने इलेक्ट्रिफिकेशन को गांव-गांव तक पहुंचते देखा है, लेकिन अभी भी बहुत जगह गांव में जहां बिजली तो है, लेकिन बड़े लंबे पावर कट्स हैं, 10 घंटे, 15 घंटे, 5 घंटे, जो भी, मतलब अलग अलग हिसाब किताब होता है। कुछ गांव आज भी हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। और जहां तक मुझे अपने खुद के बचपन की याद है, जब मैं अपने गांव जाता था तो शाम 6 बजे के बाद एकदम ऐसा सन्नाटा छाता था कि जैसे कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी काम करना है, खाना बनाना है, बाज़ार जाना है, कुछ काम धंधा करना है, आप 6-7 बजते बजते आप घर वापस आ जाओ और अंदर ही रहो। थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो तो कर सकते हो कि घर में एक लालटेन जल रहा है या कुछ थोड़ा बहुत। तो उसमें मैंने देखा कि शहरों और गाँव में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है। शहरों में जो ये 5-6 घंटा और आपको मिलता है जब बिजली रहती है, और अब तो गाँव में भी बिजली आती है, बट जहाँ नहीं आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ा गैप हो गया है जिसमें कि कुछ लोगों को 5 से 6 घंटा कुछ बेहतर करने का ज़्यादा मौका मिलता है, चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे वो कोई उद्योग करना हो, काम धंधा करना हो, कुछ भी करना हो। और गाँव में जहाँ पे बिजली नहीं है उससे वो वंचित हो जाते हैं। सौर ऊर्जा आने से यही जो डिफरेंस है, जो गैप है, इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे। और उससे मेरा ये मानना है कि फिर जो क्षमताएं, जो ऊंचाइयां शहर के बच्चे, शहर के लोग प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे गांव में भी प्राप्त होगी, और उससे ओवरऑल खुशहाली भी बढ़ेगी और लोग ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो मैंने अभी मिलाप में आप लोगों का कैंपेन देखा, और वो भी सोलर लाइट को ही लेके है। तो क्या आप ये कैंपेन सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये होगा कि आपको ये डिसीजन लेने में आप ये डिसीजन तक क्यों पहुँचे और कैसे पहुँचे? और ये जर्नी कैसी है कि आपको क्यों पैसों की ज़रूरत है सोलर लाइट लगाने के लिए गाँव में? सोलर लाइट लगाना एक मुहिम है प्रयत्न के लिए। आज की डेट में हमें ये पता है कि ये एक बहुत अच्छा टूल है, ज़रिया है गांव में बदलाव लाने का। चाहे वो देर रात तक सुरक्षित महसूस कराना हो महिलाओं को और बच्चियों को, चाहे वो किसी पढ़ाई में या औद्योगिक काम में लगाना हो, इन सब को करने के लिए सोलर लाइट बहुत बड़ा ज़रिया है, जिसमें हमने देखा कि हर एक गांव में हम 100 से 200 लाइट लगा सकते हैं। तो हमारे लिए तो संभव है नहीं कि हम हर एक गांव को अडॉप्ट कर लें, लेकिन कुछ गांव में जहां हमारी पकड़ है, जहां हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं या जहां हमारी थोड़ी सी पैठ है, वहां पे हमने इस मुहिम को उठाया कि हम सोलर लाइट प्रोवाइड करेंगे। और मिलाप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्राउड फंडिंग के लिए बहुत पॉपुलर है, बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म है। इसको कई लोग यूज़ करते हैं, कई लोग सक्सेसफुल होते हैं।
तो मेरा ये मानना है कि चाहे मुहिम प्रयत्न की हो और सोलर लाइट लगाने की हो, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो इस मुकाम में कहीं ना कहीं कुछ योगदान करना चाहते हैं, और ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े, उसके लिए मिलाप और मिलाप जैसे कुछ और भी है, जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो चाहे मेहनत हमारी हो, लास्ट माइल पे सोलर लाइट्स हम लगाएं, लेकिन हमारे इस मुहिम में और लोग जुड़े, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, तो बूंद बूंद से अगर घड़ा जब भरेगा तो हम इस काम को अंजाम देंगे। तो यही मंशा है हमारी, और इसलिए हमने मिलाप को चुना है। तो क्या इस मुहिम के अलावा भी प्रयत्न जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके कुछ काम कर रहा है? कोई ऐसे 5-6 आप प्रोजेक्ट्स बता दीजिए जिसमें प्रयत्न जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को लेके काम करता हो। जी, सो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इसके बहुत आयाम हैं। सोलर, और जैसे सोलर ही है उसी में बहुत सारे आयाम। हम बार बार सोलर लाइट्स की बात कर रहे हैं, बट सोलर लाइट एक चीज़ है, सोलर रूफटॉप पैनल्स दूसरी चीज़ है, सोलर पंप सेट्स तीसरी चीज़ है। सोलर में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग औद्योगिक सेटिंग्स में या एग्रीकल्चरल सेटिंग्स में या हाउस होल्ड सेटिंग्स में काम आ सकती है। तो सोलर एक बहुत बड़ा ज़रिया है जिसमें हम कर सकते हैं। प्रयत्न का जो काम है वो होलिस्टिक होता है। तो सस्टेनेबिलिटी का जो स्पेस है उसमें जो सबसे बड़ा काम है हमारा वो है ग्रीनिंग का, जिसमें पेड़ लगाना, फॉरेस्ट लगाना। सो सोशल फॉरेस्ट्री है, रेगुलर फॉरेस्ट्री है, अर्बन फॉरेस्ट्री है, मियावाकी फॉरेस्ट्री है। ये सब हम काम अपने देश के कई भागों में करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों से बात करके, पंचायत से बात करके, म्यूनिसिपैलिटी से बात करके हम लोग लैंड उठाते हैं और उसमें प्लांटेशन का काम करते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो समुद्र का तट हो, चाहे वो पठार हो। तो अलग अलग टाइप की फॉरेस्ट्री होती है, उसमें अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ लगते हैं। कई बार फार्मर्स के साथ हम ये काम करते हैं जहाँ फ्रूट ट्रीज़ और दूसरे ट्रीज़, टिम्बर ट्रीज़ की प्लांटेशन करते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है हमारा। दूसरा सस्टेनेबिलिटी का हमारा प्रोग्राम सोलर वाला है, जिसके बारे में आपने सुन लिया। तीसरा प्रोग्राम हम लोग फार्मर्स के साथ करते हैं, किसानों के साथ करते हैं, जिसमें हम लोग उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ प्रेरित करते हैं। चौथा प्रोग्राम हमारा क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम है, जिसमें हम कम्युनिटीज़ और यूथ के साथ एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम करते हैं जिसमें वो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स और क्लाइमेट चेंज के बारे में समझे और उससे जुड़ी हुई जो चीज़ भी वो कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, उसका इनिशिएटिव ले करके वो बदलाव लाएं अपने लोकेशन में। तो इस तरह से कई प्रोग्राम्स हैं हमारा जो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ही आयाम में फिट होगा। So sir, my 6th question would be, what role do you envision for CSR partners, donors and citizens in building a truly sustainable future for these villages? I'm asking this in English because CSR partner can be from foreign as well. Yeah, CSR can no doubt play a very important role in providing the necessary funds and guidance and expertise in truly making sustainable development a mission for the entire planet. Some of the very big CSRs have no doubt just have very deep pockets, but they can also provide a lot of technical guidance and support that will allow us to do better quality work. Their resources can allow us to reach out to more number of locations where good work is needed. And of course, their technology can support to bring innovations which implementing agencies like us can take to the last mile and test them out and see what is successful and try and replicate to do more of it. Now, this is a role that all CSR corporates, whether if they are in India or institutions that are abroad, can help all developing countries do a better job as far as sustainable living is concerned. तो सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कंपनीज़ को कि उन्हें ऐसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सपोर्ट करने चाहिए? मेरा जो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज की जो बात होती रहती है वो ज़्यादातर कॉन्फ्रेंसेस में होती है।
हाँ, हमारे पास एक मॉडल है जिसमें क्लाइमेट चेंज को हम पंचायत लेवल, स्लम लेवल पर हम ऑपरेट कर सकते हैं, जहाँ नागरिकों की भागीदारी से हम क्लाइमेट चेंज पर एक्शन ले सकते हैं। तो अगर उस मॉडल को आप सपोर्ट करें तो बेहतर होगा, क्योंकि फ़िलहाल जो सपोर्ट आता है वो नॉर्मली होता है कि अच्छा आप ट्री प्लांटेशन कर लो, आप वाटर पे काम कर लो, आप फार्मर पे काम कर लो, तो आइसोलेटेड सा रहता है और क्लाइमेट चेंज का और सस्टेनेबिलिटी के जो बाकी डायमेंशंस हैं वो रह जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सबको सभी पे काम करना चाहिए, बट होलिस्टिक प्रोग्राम्स उठाने की कोशिश करनी चाहिए CSRs को, क्योंकि हम एक विलेज में अगर हम पहुंच जाते हैं, पंचायत में हम पहुंच जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम केवल यहाँ पेड़ लगाएंगे, अब हम वाटर रिसोर्सेज पे काम नहीं करेंगे, अब हम पॉन्ड रिज्यूविनेशन पे काम नहीं करेंगे, सॉइल पे काम नहीं करेंगे एंड सो ऑन। तो नॉर्मली कोशिश करनी चाहिए कि हम होलिस्टिक पैकेजेस बनाएं जिसमें किसी रीजन को अडॉप्ट करके हम फुल सर्विस दें। तो यही गुजारिश रहेगी मेरे CSR चैरिटीज। सर, मेरा लास्ट प्रश्न होगा कि अगर आपके पास 1 मिनट है तो आप कैसे ये सोलर लाइट जो मुहिम है ये कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? तो सोलर लाइट एक ऐसा उपाय है जो बहुत कम समय में, आज की रेट में काफ़ी सस्ते में, दूर दराज के गांवों और स्लम्स में जहां बिजली तक की अभाव है और रात में 6-7 बजे के बाद जब बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, वहाँ की दुनिया बदल सकती है। और उस बदलाव में चाहे वो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की बात हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई की बात हो, चाहे महिलाओं को अपने कामकाज करने में या पुरुषों को अपने कामकाज करने की बात हो, या ओवरऑल सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो, इन सभी आयामों पर वो बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो सोलर लाइट को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप एक लोकेशन की पूरी डेमोग्राफिक और सोशल और फिज़िकल लाइफ को आप पूरी तरह बदल देते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है और ये बड़ा मेजरेबल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ क्या बदलाव आ रहा है। आप वहाँ की महिलाओं से पूछ सकते हैं कि वो अब कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं और उनके आवागमन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो सोलर लाइट का इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।